Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, today we will explore the facts about the stages of human development. As we have already completed two stages of human development, infancy and childhood. Now in today's lecture, we will purely focus on another third important stage of human development, that is entitled as adolescence. Dear students, adolescence is the phase of life between childhood and adulthood from ages 12 to 20. जैसे कि हम सब जानते हैं, कीपिंग इन व्यू द एडोलेसेंस पीरियड, ये बेसिकली स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 years एंड एंड्स एट द एज ऑफ 20 years. यानी कि ये वो पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है जो 12 से लेके 20 years तक होता है. According to the father of adolescence, namely Stanley Hall, adolescence is the stress, strain, storm, and strife period as significant changes comes in their life. For example, physical, psychological, and behavioral. As dear students, we know that Stanley Hall is being called the father of adolescence. According to Stanley Hall, adolescence rough and tough period है और adolescence age को age of crisis कहा जाता है, because there is the rapid growth and development of an individual. ये वो स्टेज है जिस स्टेज में हार्मोनल चेंज एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत तेज़ी के साथ होती है, एंड दोज हार्मोनल चेंजेस affects physical, psychological, by and large, behavioral aspect of adolescents. Now, dear students, we will in today's lecture purely discuss various characteristics of adolescents. Number 1, physical development. The bones and muscles get longer and stronger during the adolescence, which allows them to take on tasks they were likely not able to do as younger children, such as lifting heavy objects, running very fast, high jumping, or biking long distances. Dear students, अगर हम एडोलेसेंस पीरियड को कंपेयर करेंगे चाइल्डहुड स्टेज के साथ, एडोलेसेंट्स में बहुत स्ट्रांग मसल और बोन डेवलपमेंट होती है एज कंपेयर टू द चाइल्डहुड स्टेज. दैट इज वाई एडोलेसेंट्स लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. अगर हम चिल्ड्रंस की बात करेंगे, बच्चों में स्ट्रॉन्ग बोन डेवलपमेंट और मसल डेवलपमेंट नहीं होती है, इसीलिए बच्चों को बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को लिफ्ट करना, एस्पेशली हैवी ऑब्जेक्ट्स को. कीपिंग इन व्यू द एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में बेसिक फ्यूचर ये है, एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स की मसल स्ट्रेंथ बहुत होती है, इसीलिए वो सिर्फ हैवी ऑब्जेक्ट्स ही को नहीं कैरी करते हैं, बट ऑल्सो एडोलेसेंट्स आर एबल टू मेक ए हाई जंप, लॉन्ग जंप. ये लॉन्ग जंप भी करते हैं, हाई जंप भी करते हैं. अगर हम बाइकिंग की बात करेंगे, एडोलेसेंट्स जिस रफ्तार से मोटर बाइसिकल को चलाते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन दैट टू ride the motor bicycle during the childhood stage,
क्योंकि एडोलेसेंस में परफेक्ट मसल कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बोन स्ट्रेंथ और मसल स्ट्रेंथ एडोलेसेंस में बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू बोथ इन्फेंसी पीरियड एंड चाइल्डहुड पीरियड। दैट इज वाई चाहे हम जंपिंग की बात करेंगे या लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे या बाइकिंग लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे, these characteristics or special qualities are possessed by the adolescents because they have perfect or well built physical development. Dear students, there is the rapid and fast physical changes in both adolescent boys and girls. The males' shoulders become broader and their muscles get bigger and stronger. अगर हम एडोलेसेंट बॉयज़ की बात करेंगे, उनके शोल्डर जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाते हैं और मसल्स जो है वो बिगर भी हो जाती है साइज से और स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। द साइज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आल्सो ग्रो एंड डेवलप, कीपिंग इन व्यू द size of reproductive organs. As we know that reproduction is that very process in which an individual or any organism is able to produce young ones. और reproductive organs adolescents में grow भी हो जाते हैं, develop भी हो जाते हैं, especially during the adolescence। जो adolescents होते हैं, there is lot of secretion of the hormone. That hormone is known as testosterone. Adolescent boys में काफ़ी मकदार से टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है which promotes the sexual character among the adolescent boys. इसके बावजूद जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका मेन फंक्शन ये है कि जो एडोलेसेंट बॉयज़ है उनकी वॉइस जो है दैट बिकम्स हस्की बिकॉज रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बेसिकली रिजल्ट इज द थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। उनके वोकल कॉर्ड्स में मोटापा आ जाता है, जिसकी वजह से जो एडोलेसेंट बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस है वो हस्की बन जाती है। The students, on the other hand, in case of girls, breast development takes place, hips grow wider and voice becomes shrill. जो टीनेजड गर्ल्स है उनके हिप्स जो है वो राउंडेड बन जाते हैं और लड़कियों में और एक क्वालिटी एडोलेसेंस की पाई जाती है। एडोलेसेंस एज में गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम द राउंडेड हिप्स और ब्रेस्ट डेवलपमेंट among the girls also have shrill or sweet voice due to the secretion of the hormone which is known as progesterone. Dear students, the pubic hair and hair in other parts of the body grows both in girls and boys. Especially beard and mustaches takes place in boys. Adolescence age में चाहे हम एडोलेसेंट बॉय की बात करेंगे या हम एडोलेसेंट गर्ल की बात करेंगे, दोनों में हेयर डेवलपमेंट होती है ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एस्पेशली द प्यूबिक हेयर। अपार्ट फ्रॉम इट, जो एडोलेसेंट बॉयज़ है उनमें मस्टिचेस भी आ जाती है और बियर्ड भी ग्रो हो जाती है। The average height of teen girls is about 5 feet and 4 inches, while as average height in teen boys is about 5 feet 8 inches. जहाँ तक कि अब हाइट का सवाल है, अक्सर इट इज़
कैलकुलेटेड साइंटिफिकली जो लड़कियां होती है उनकी हाइट जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू द बॉयज. द एवरेज इन हाइट ऑफ गर्ल्स इज 5 feet 4 inches, while as average in height of boys is 5 feet 8 inch. यानी कि गर्ल्स में 5 feet 4 inch हाइट है और बॉयज की जो हाइट होती है वो 5 feet 8 inch है. Dear students, there is round about 4 inch difference in terms of height of both boys and girls. The adolescent period is being called the puberty age, as sexual characteristics develop in both boys and girls and they get attracted to each other. Adolescence age वो age है जिसे हम puberty age के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं, puberty age is basically the biological maturity age, जहाँ पर both boys and girls में sexual characteristics develop होते हैं. And due to the development of sexual characteristics found in both adolescent boys and girls, they get attracted to one another. यानी कि जो बॉय है उसकी अट्रैक्शन गर्ल की तरफ होती है और गर्ल जो है उसकी अट्रैक्शन बॉय की तरह हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलरली एडोलेसेंस एज में डेवलप हो जाते हैं. दैट इज वाई द एडोलेसेंस एज इज बीइंग कॉल्ड रफ एंड टफ एज. मोर एवर अगर हम स्टैनली हॉल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसे कहते हैं एज ऑफ क्राइसिस. डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हु इज बीइंग कॉल्ड द फादर ऑफ एडोलेसेंस. तो योर आंसर शुड बी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. द फादर ऑफ एडोलेसेंस इज बीइंग कॉल्ड द स्टैनली हॉल. नाउ वी विल डिस्कस वेरियस फैक्टर्स which affects the physical development. कौन कौन से फैक्टर्स फिजिकल डेवलपमेंट पे असर करते हैं. नंबर 1, डाइट एंड एक्सरसाइज. ईटिंग ए हेल्थी डाइट that includes lots of fruit, vegetables, whole greens, meat and dairy can help you maintain a good health. जहाँ तक कि एडोलेसेंट्स के हेल्थ का सवाल है, how we will improve the health among the adolescents. It means the improvement of the health is based on diet and exercise. अगर adolescent boys and girls fruits लेंगे, vegetables लेंगे, whole greens लेंगे, meat लेंगे या dairy लेंगे, these foods will definitely help to the adolescents to maintain their physique, or simply we can say that overall health. The food which contains carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, fiber, etc. Dear students, जो food enriched है by means of proteins, minerals, carbohydrates, fats, vitamins, etc. These all types of ingredients promotes the good health among both adolescent boys and girls. Healthy food खाने से सिर्फ adolescent boys और girls की health ही maintain नहीं रहती है, बल्कि the adolescent boys and girls also attain the early puberty. जो बच्चे होते हैं वो जल्दी biologically mature होते हैं, because biological maturity, especially the development of the sexual characteristics, are directly linked with the type of food. जो food healthy खाएगा, it means that food which is balanced in nature. I mean to say you balanced diet which contains all the essential nutrients. जैसे कि हमने already detailed account दिया है, minerals, fats, proteins, carbohydrates,
फाइबर्स, वाइटामिन्स जिस फूड में होते हैं, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्यूबर्टी। इसीलिए साइंटिफिकली इट हैज़ प्रूव्ड जिन कंट्रीज का स्टैंडर्ड हाई है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वहां पर अर्ली प्यूबर्टी बच्चों में पाई जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज improve your brain health, help manage weight, reduce risk of disease, strengthen bones and muscles, and improve your ability to do everyday activities. By and large, help you sleep better. Regular exercise also improves the overall physical growth and development. Physical exercise करने से जो एडोलेसेंट्स हैं वो अपने वेट को मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे में मोटापा आ जाएगा तो उस मोटापे को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज का करना ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से सिर्फ एक इंडिविजुअल बॉडी इमेज को मेंटेन ही नहीं कर पाता है, बल्कि देयर आर लीस्ट चांस ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ का रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है या कम चांसेस होते हैं। स्पेशली द वेरी मच ड्रेडफुल डिजीज़ लाइक कार्सिनोजेनिक डिजीज़। तो रेगुलर एक्सरसाइज से हम उन ड्रेडफुल डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, रेगुलर एक्सरसाइज helps to both adolescent boys and girls to strengthen their bones and muscles and improve their ability to do everyday activities. जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी बहुत एक्टिव हो जाता है, और हेल्थ मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। There is the close connectivity between the sleeping cycle and regular exercise. जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और उनका स्लीपिंग साइकिल भी बहुत साउंड और बेहतरीन होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका स्लीपिंग साइकिल बहुत साउंड होता है। वो 8 से लेके 10-11 घंटे भी सोते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका स्लीपिंग साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल दैट टू गो फॉर द स्लीप। वो अच्छी तरीके से नहीं सो पाते हैं। वो 4 घंटे से लेके 5 या 6 घंटे तक खाली सो पाते हैं और वो साउंड स्लीपिंग साइकिल भी नहीं होता है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज से सिर्फ हम अपने मसल्स को डेवलप ही नहीं कर सकते हैं या अपनी बॉडी को ड्रेडफुल डिजीज से नहीं बचा सकते हैं, बल्कि इट आल्सो प्रमोट्स द साउंड स्लीपिंग साइकिल, क्योंकि नींद और एक्सरसाइज में एक क्लोज कनेक्टिविटी और रिलेशनशिप है। नाउ नंबर 2, chronic illness. Conditions such as asthma, diabetes, bowel problems, anxiety and depression also can contribute to delays in growth and puberty. Chronic illness in terms of asthma, diabetic patients or those patients who have bowel problems या apart from biological disease, वो adolescents जिनमें psychological problems है, especially डिप्रेशन और स्ट्रेस, उनमें डिले हो जाता है ग्रोथ और प्यूबर्टी का। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडिविजुअल्स में लेट डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए रिसर्चिकली इट हैज़ प्रूव्ड दैट जो इंडिविजुअल्स क्रोनिक डिजीज के शिकार है, चाहे वो अस्थमा पेशेंट्स है, शुगर डायबिटीज़ पेशेंट्स है, या इंडिविजुअल में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, उनमें लेट प्यूबर्टी हो जाती है। नाउ नंबर 3, ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन कैन हार्म एडोलेसेंट्स growth and development. Excessive substance abuse causes liver damage, lung cancer, kidney failure, stroke, mental confusion, brain damage, and memory problems.
There is also the close relationship between drug addiction and physical growth and development. Adolescents, जिसको हम टीनेजड पॉपुलेशन भी कहते हैं, अगर वो ड्रग एडिक्शन करेंगे, कोई भी ड्रग इंजेक्शन के ज़रिए, टेबलेट के ज़रिए, स्मोकिंग की फॉर्म में, चरस, गांजा, अफीम या अल्कोहल की सूरत में ड्रग्स लेंगे, तो उससे उनकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है. स्पेशली एक्सेसिव सब्सटेंस अब्यूज causes the liver damage, lung cancer, kidney failure, stroke, mental confusion, brain damage, by and large memory loss among the drug addicts. जो ड्रग एडिक्ट्स है उनमें ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है. As we know that drug addiction is the global problem. ये ग्लोबल प्रॉब्लम है. स्पेशली जब हम साइकोलॉजी के प्रिज्म से देखते हैं तो ड्रग एडिक्शन के शिकार होने के चांसेस एडोलेसेंट्स को होते हैं, क्योंकि ये टीन एज है, रफ एंड टफ एज है. यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स को दैट टू इंडल्ज इन द ड्रग एडिक्शन. इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है एडोलेसेंट्स को. अगर हम यूनिवर्सल लेवल पे इस वक्त देखेंगे जो यूथ है ग्लोबली, तो वो ड्रग एडिक्शन के शिकार है. तो उस ड्रग एडिक्शन से बचाने के लिए दैट वी हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग. उन्हें इस तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग देनी है कि आपकी हेल्थ कैसे ड्रग एडिक्शन से इफेक्ट हो जाती है, किस तरीके से एक एडोलेसेंट बॉय और गर्ल के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है अगर वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स कर लेंगे, जिसकी वजह से यानी कि लिवर डैमेज हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक्स के चांसेस होते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं या ब्रेन डैमेज उनमें पाया जाता है. ड्रग एडिक्शन से अपार्ट फ्रॉम दीज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेमोरी लॉस भी हो जाता है. जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनकी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है. नंबर 2, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. चिल्ड्रन एज 6 to 10 usually think in concrete ways. It means thinking which is based on what you can see, hear, feel and experience. While as in case of adolescents, they have abstract thinking power. जहाँ तक कि बच्चों का सवाल है, स्पेशली वो बच्चे जिनका एज बार 6 to 10 years है, वो यूजुअली कंक्रीट वे में सोचते हैं. आई मीन टू से यू व्हाट दे कैन सी, हियर एंड फील. जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती है उन चीज़ों के बारे में वो सोच सकते हैं. जो चीज़ें उन्हें दिखाई नहीं देते हैं, आई मीन टू से यू विच आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, बच्चे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते हैं क्योंकि उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मिसिंग होती है. और जो चीज़ें वो फील करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ सर्द है, इस चीज़ के बारे में वो सोच सकते हैं. या कोई साउंड उन्हें सुनाई देता है तो उस साउंड के बारे में वो सोच विचार करते हैं. नटशल में हम कह सकते हैं जो बच्चे होते हैं जिनका स्पेशली एज बार होता है इन बिटवीन 6 to 10 years, वो कंक्रीटिक वे में सोचते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं सोच सकते हैं. और अगर हम इसके बरक्स एडोलेसेंट स्टेज की बात करेंगे, एडोलेसेंट स्टेज इज दैट स्टेज जिस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पावर डेवलप हो जाता है. ना सिर्फ एडोलेसेंट कंक्रीट सब्सटेंस के बारे में सोचते हैं, बल्कि जो चीज़ें उन्हें नहीं दिखाई देती है उस चीज़ के बारे में भी एडोलेसेंट सोचते हैं, क्योंकि उनमें डीप इमेजिनेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पाई जाती है. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट फिजिकली ऑब्जर्वेबल. जैसे कि हम सब जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो थिंकिंग है जो हेल्प करती है एडोलेसेंट्स को दैट टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच आर नॉट फिजिकली ऑब्जर्वेबल, जो आंखों से
नहीं दिखाई देते हैं, जिसमें हम सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, सेंसेस आर कॉल्ड द गेटवेज ऑफ नॉलेज। अगर कोई चीज़ सेंसेस से परसीव नहीं होता है, इंटरप्रेट नहीं होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बुनियाद पे जो एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, वो सिटल दैट आर कॉन्फिडेंट थिंग्स एग्जिस्ट, अगर उन्हें वो दिखाई नहीं देते हैं, अगर वो सुनाई नहीं देते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बुनियाद पे कहते हैं कि थिंग्स आर एग्जिस्टिंग। दैट इज़ वाई जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाता है, हाई डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर स्पेशली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एज। अगर हम एडोलेसेंट बच्चे को, चाहे वो एडोलेसेंट बॉय है चाहे वो गर्ल है, एटम का भी कंसेप्ट देंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द मैटर, और इसी एटम में और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लाइक एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स, electrons are negatively charged particles, while as neutrons are neutral in charge। लेकिन ना तो हम प्रोटॉन्स देखते हैं, ना तो हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, ना न्यूट्रॉन्स हम देख पाते हैं, लेकिन फिर भी एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है कि एटम इज एग्जिस्टिंग, देयर इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि एडोलेसेंस पीरियड में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एडोलेसेंट्स कैरी करते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि एटम इज एग्जिस्टिंग और एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर यही कॉन्सेप्ट हम एटम का एक छोटे बच्चे को देंगे, यानी कि द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बच्चा है वो प्रोटॉन को नहीं समझ सकता है, वो न्यूट्रॉन को नहीं समझ सकता है, किस तरीके से न्यूट्रॉन जो है ये चार्जलेस है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स उनको समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि बच्चों में, चाहे हम इन्फेंसी की बात करेंगे या चाइल्डहुड स्टेज की बात करेंगे, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग न होने के बराबर होती है। दैट इज़ वाई जो चिल्ड्रंस है वो कंक्रीट वे में सोचते हैं, लेकिन जो एडोलेसेंट्स है वो कंक्रीट वे में भी सोचते हैं और एब्स्ट्रैक्ट वे में भी सोचते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जो साइंटिफिक एज होती है, साइंटिफिक एज एडोलेसेंस एज है या चाइल्डहुड एज है? तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, अगर आप जीन पियाजे के प्रिज्म से भी देखोगे, जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, साइंटिफिक एज इज एडोलेसेंस एज। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को समझने के लिए we can also give the another beautiful example. For example, thinking about freedom and respect is abstract thinking because these are ideas do not exist as a physical thing. अगर हम फ्रीडम की बात करेंगे या रेस्पेक्ट की बात करेंगे, ये वो आइडियाज़ है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जिनका शेप, साइज और वेट नहीं है, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स सच एज साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल लॉज, पोइट्री एंड नॉवेल्स। जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, दिस इज नोन एज हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बुनियाद पे वी आर एबल टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क्स और एक्टिविटीज। एडोलेसेंट्स जो है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द बेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चाहे हम एडोलेसेंट बॉयज़ को नावल कोई देंगे या पोइट्री देंगे, वो पोइट्री को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, नावल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, या मैथमेटिकल लॉज वो अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। वो साइंटिफिक लॉज और मैथमेटिकल लॉज को सिर्फ नहीं समझ पाते हैं, बल्कि उनकी एप्लीकेशन भी ढूंढते हैं ऑन द बेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो पोइट्री और नावल को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो इमेजिनेशन में वो पोइटिक आइडियाज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ड्यूरिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स ग्रो रैपिडली।
दिस allows for more complex sophisticated thinking. अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो एडोलेसेंस पीरियड है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो रैपिडली ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी थिंकिंग जो है या ओवरऑल ब्रेन कैपेसिटीज जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। चाहे हम रीजनिंग की बात करेंगे, आई मीन टू से यू इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, या हम थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, या अदर मेंटल ऑपरेशंस हैं लाइक मेमोरी है, मेमोरी ऑफ रिटेंशन है, मेमोरी ऑफ रिकॉल है। जो ये तमाम मेंटल कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज एडोलेसेंट्स में पाई जाती है, ये हाईली डेवलप होती है बिकॉज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द न्यूरॉन्स। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, cognitive development is directly related to the biological maturity. For instance, more will be the age, more will be the cognitive development. जैसे कि हमने already discuss किया है, जीन पियाजे is considered one of the eminent developmental psychologists. उसने developmental theory दी है which is known as जीन पियाजे's cognitive development. According to the Jean Piaget, the biological maturation is directly related to the cognitive development. जीन पियाजे का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही था कि जितनी कि एक बच्चे की एज बढ़ जाती है उतनी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में उसने 4 स्टेजेस दिए हैं। पहला स्टेज जो है दैट इज नोन एज सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा स्टेज इज कॉल्ड द प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज इज कॉल्ड द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड लास्ट फोर्थ स्टेज इज बीइंग कॉल्ड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है और लीस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निशन न होने के बराबर होती है सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज है जहां पर बच्चे की एज 0 से 2 ईयर्स तक होती है। इसीलिए जो सेंसरी मोटर स्टेज है वहां पर लीस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाई जाती है एज कंपेयर टू द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो एडोलेसेंस एज है, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं। इसीलिए 99% कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो टीन एज में कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम एडोलेसेंट एज भी कहते हैं। नाउ नटशल में हम कह सकते हैं, जब हम जीन पियाजे के प्रिज्म से देखते हैं, जितनी की एज बढ़ जाएगी उतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी एक इंडिविजुअल में हो जाएगी। एडोलेसेंट्स possesses highly developed cognitive capacities which includes memory, concentration, reasoning, perception, imagination, creativity and problem solving. जितनी की एज बढ़ जाएगी उतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ जाती है। इसीलिए जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग मेंटल फैकल्टीज पाई जाती है, उनमें स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज पाई जाती है, एस्पेशली मेमोरी, कंसंट्रेशन, रीजनिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या अदर कोई भी मेंटल एबिलिटी जो है ये हाईली डेवलप्ड होती है। चाहे हम रीजनिंग की बात करेंगे, एडोलेसेंट जो है वो इंडक्टिवली भी रीजन करते हैं और डिडक्टिवली भी, वो कन्वर्जेंटली भी सोचते हैं, डाइवर्जेंटली भी सोचते हैं। और एडोलेसेंट्स में क्रिएटिव पोटेंशियल्स भी होते हैं, एंड मोर एवर वी कैन से दैट दे हैव आल्सो द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो एबिलिटी है जो हेल्प करती है एडोलेसेंट्स को टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, चाहे सिंपल प्रॉब्लम्स है या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। नंबर 3, social and emotional development. Adolescents have a sense to develop strong relationships with family and friends. As their social circles expand, adolescents spend less time with their families and may focus more on their peers. That is why they needed proper guidance and counseling.
in order to protect them from antisocial activities like stealing, looting, quarreling, abusing, drug addiction, sexual harassment, damage of public property, etc. आहिस्ता आहिस्ता से जो सोशल सर्कल जब एक्सपेंड होता है, adolescents then spend less time with their families and may focus more on their peers. That is why they needed proper guidance and counseling in order to protect them from the antisocial activities. यूं ही उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है तो फिर एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो घर में कम टाइम कंज्यूम करते हैं। इसीलिए अक्सर बेशतर हम देखते हैं जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो घर देर से पहुंचते हैं। तो उस सूरत में प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अदरवाइज एडोलेसेंट्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने की, जैसे कि स्टीलिंग में, लूटिंग में, क्वारलिंग में, एब्यूजिंग में, एंड कॉमनली ड्रग एडिक्शन अफेक्ट्स टू द एडोलेसेंट्स, या सेक्सुअल हैरासमेंट का कैरेक्टर जो है वो एडोलेसेंट्स में पाया जाता है। एडोलेसेंट्स आल्सो डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फैक्ट्स पे नज़र डालेंगे, जब भी किसी जगह दो ग्रोह के दरमियान लड़ाई होती है या कोई भी झगड़ा या फितना फसाद हो जाता है, चाहे वो लड़ाई दो ग्रोह के दरमियान हो जाएगी, दो सोसाइटीज़ के दरमियान हो जाएगी, या दो कम्युनिटीज़ के दरमियान हो सकती है, एंड इट में आल्सो बी बिटवीन द टू फैमिलीज। जो डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादातर अधिकतर एडोलेसेंट्स की वजह से होती है, क्योंकि ये लड़ाई में लीड करते हैं। इसीलिए स्टैनली हॉल ने कहा है कि ये एज ऑफ क्राइसिस है, ये रफ एंड टफ एज है। यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है एडोलेसेंट्स को, ताकि हम गाइडेंस और काउंसलिंग के ज़रिए उनकी जो एनर्जी है, कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में हम टू से यू चैनलाइज करेंगे। These adolescents also possesses the hero worship. Hero worshipping is a very prominent characteristics of adolescents. जो adolescents होते हैं उनमें हीरो वर्शिप का कैरेक्टर होता है। हीरो वर्शिप वो कैरेक्टर है जहाँ पर एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हैं। रोल मॉडल सपोर्ट्समैन भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, रिलीजन गुरु भी हो सकता है, या कोई और फिल्म स्टार हो सकता है। जिस तरीके से विलन एक मूवी में या फिल्म में बिहेव करता है क्योंकि उसे अपना रोल परफॉर्म करना है, लेकिन एडोलेसेंट जो है वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है क्योंकि उसका मॉडल तो वो विलन है, तो वो नेचुरल लाइफ में, अपनी ओरिजिनल लाइफ में वो उसी प्रकार से बिहेव करता है, जिसकी वजह से जिसके रिपरकशंस बहुत कठिन उस एडोलेसेंट के लिए निकलते हैं। इसीलिए हीरो वर्शिप में भी एक एडोलेसेंट को प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार न हो जाएगा। The sex-related problems are commonly found in adolescents, and they might start to have romantic relationships, go on dates. Dear students, अगर हम अब सेक्स के प्रिज्म से देखेंगे, जो सेक्सुअल टेंडेंसी बोथ एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स में होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये कोशिश करते हैं एक दूसरे के नज़दीक आने के, इसीलिए ये रोमांटिक लाइफ गुजारते हैं और डेट्स पे भी जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द सेक्स रिलेटेड इश्यूज विच आर एग्जिस्टिंग और विच आर एट द पीक इन बोथ एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स. The adolescent possesses strong emotions like fear, anger, love, which can give birth to number of problems such as oversensitiveness in familial, religious and social concerns. यहाँ तक कि अब इमोशंस का सवाल है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी इमोशन स्ट्रांग होती है? इमोशन ऑफ फियर, एंगर एंड लव। ये इमोशंस हाईली स्ट्रांग एडोलेसेंट्स में पाई जाती है, जिनकी वजह से जो एडोलेसेंट्स है
वो ओवर सेंसिटिव बन जाते हैं फैमिलियल मैटर में, रिलीजियस मैटर में, सोशल कंसर्न्स में। कि जो इमोशनल अटैचमेंट एडोलेसेंट्स की होती है वो फैमिली के साथ भी होती है, अपने रिलीजन के साथ भी होती है, कम्युनिटी के साथ भी होती है, या फ्रेंड्स के साथ भी होती है। अगर हम एडोलेसेंट के माँ बाप के बारे में कुछ गलत सोचेंगे या कुछ गलत कहेंगे तो एडोलेसेंट जो है वो इमोशनली इनस्टेबल फील करते हैं, उनमें एग्रेशन डेवलप हो जाता है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो ओवर सेंसिटिव बन जाते हैं फैमिलियल मैटर्स में, लाइफ पार्टनर के मसले में या रिलीजियस के मसले में, क्योंकि रिलीजियस इंटॉलरेंस एडोलेसेंट्स में पाई जाती है। अगर हम उनके कम्युनिटी के रिलेटेड कुछ कहेंगे, रिलीजन के रिलेटेड कुछ कहेंगे तो उस वक्त वो टॉलरेंस मैकेनिज्म खो बैठते हैं, या किसी वजह से कि कोई डिस्प्यूट होगा एक फैमिली और दूसरे फैमिली के दरमियान, तो उस वक्त इमोशनली इनस्टेबल फील करते हैं एडोलेसेंट्स, और दे टेक पार्ट इन द डिस्ट्रक्शन, दे टेक पार्ट इन द क्वारल। उनमें एंगर जो है वो बहुत हावी हो जाता है, या कभी कभार उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई इशू है, पर्सनल इशू है, जिसकी वजह से इन्हीं एडोलेसेंट्स में इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। नंबर 4, मॉरल डेवलपमेंट। Moral development refers to the process whereby people form a progressive sense of what is right and wrong, good and bad, keeping in view the moral development. जहाँ तक कि moral development का सवाल है, the adolescents are able to differentiate between the good and bad, right and wrong, legal and illegal, pure and impure, चेस्ट एंड अनचेस्ट। वो सही और गलत के दरमियान फर्क जानते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट्स में हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उनमें हाई रीजन होता है। द कॉमन मॉरल वैल्यूज फाउंड इन एडोलेसेंट्स आर रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, कंपैशन, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, शेयरिंग, कोऑपरेशन, जस्टिस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी। कीपिंग इन व्यू द एडोलेसेंस स्टेज, the adolescents possesses or cherish various moral values। चाहे आप रेस्पेक्ट की बात कर लो, ऑनेस्टी की, कंपैशन की, काइंडनेस की, ग्रेटिट्यूड, शेयरिंग, कोऑपरेशन, जस्टिस, डिग्निटी, बाय एंड लार्ज इक्वलिटी, ये तमाम मॉरल वैल्यूज जो है ये एडोलेसेंट्स में पाए जाते हैं। मॉरल और सोशल वैल्यूज एडोलेसेंट्स को हेल्प करता है to engage and participate in different social activities, चाहे वो community based activities है, religious based activities है। इसीलिए आम फाम वे में हम देखते हैं कि अगर social level पे कोई वर्क है तो वो एडोलेसेंट्स बखूबी उसमें पार्टिसिपेशन दिखाते हैं और अपनी शिरकत करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, moral values and social values also supports to the adolescents to develop their health, especially self-esteem, lower rates of substance abuse। मॉरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ की बदौलत से जो एडोलेसेंट्स है उनमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई हो जाती है, और जो सेल्फ एस्टीम है, जैसे कि वी नो दैट सेल्फ एस्टीम इज दैट वेरी साइकोलॉजिकल नीड इन विच एन एडोलेसेंट्स ट्राइज टू मेंटेन देयर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रिगार्ड। इन्हें दूसरे के सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ रिगार्ड की भी परवाह होती है, और अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिगार्ड के बारे में एडोलेसेंट्स सोचते हैं। नटशल में हम कह सकते हैं जो एडोलेसेंट्स होते हैं अगर इनमें हाई मॉरल डेवलपमेंट और सोशल वैल्यूज होंगे तो ये एडोलेसेंट्स को बचाता है ड्रग एडिक्शन से। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस किया है, किस तरीके से ड्रग एडिक्शन जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो पूरे दुनिया में एडोलेसेंट्स है वो ड्रग एडिक्शन ने अपने लपेट में ले लिया। इसीलिए कि देयर इज नीड ऑफ टू डेवलप द मॉरल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज अमंग द एडोलेसेंट्स। अगर हम एडोलेसेंट्स में मॉरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज डेवलप करेंगे, ऑटोमेटिकली जो सब्सटेंस यूज है जिसको हम कह सकते हैं ड्रग एडिक्शन भी, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। उनकी एबिलिटीज और कैपेसिटीज हम
प्रॉपर वे में चैनलाइज कर सकते हैं। This was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss the various problems which are faced by the adolescents. If you really enjoyed my lecture, then kindly like, share and subscribe my channel. Thank you and grow strong.